Good morning, students. So yesterday I told you about first to 9 chapter, and now we will start a chapter 10. So your chapter 10 name is here respiration in organisms. Respiration से मीन है श्वसन, सांस लेने की प्रोसेस. So organisms में respiration we will study in this chapter. Their first topic of this respiration types. So there are two types of respiration. First one aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. So these both respiration are here and we have to also study their similarities and their differences. So this one topic in chapter 10 we will study. Next one topic is here breathing in humans. Human beings में सांस लेने की कौन सी प्रोसेस है? So this one we will study in this topic. In this topic we will study these 2 points. First one is here steps and second one is process. In steps there are 2 steps. First one inhalation, second exhalation. So कैसे हम सांस अंदर लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, उन दोनों स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे. एंड ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सो दैट वन प्रोसेस ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस. नेक्स्ट वन टॉपिक यू विल सी बेटा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. So breathing in humans we will study here, and in this chapter we have to study about the other animals also. So which animals are here? Cockroach, earthworm and fish. These 3 animals also we have to study in this chapter, breathing in animals. So we know very well fish में breathing के लिए कौन से organs होते हैं? लाइक गिल्स. ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होती हैं ऐसे ही फिश में होती हैं गिल्स. अर्थवर्म स्किन की हेल्प से ब्रीदिंग करता है एंड कॉकरोच जो है वो ब्रीदिंग करता है ट्रैकिया की हेल्प से. सो उनमें ये ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड. सो दैट इज योर 10 चैप्टर एंड व्हेन आई विल टीच दिस चैप्टर 10 आई विल टेल यू दिस ऑल थिंग्स इन डिटेल. Now beta your next chapter 11. So chapter 11 is here transportation in animals and plants. Transportation से मीन है परिवहन, यानी उनकी बॉडी में जो भी मटेरियल्स हैं वो कैसे वन पार्ट टू अनदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में. सो दैट वन मेथड वी विल स्टडी इन दिस chapter. So firstly about the animals. In the animals we have to study about humans, and in humans firstly we have to study about the circulatory system of humans. In circulatory system से मीन है हमारा जो रक्त का परिसंचरण है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. So in circulatory system we will study about the blood, यानी ब्लड जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस. नेक्स्ट वन अबाउट ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है, लाइक वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज. सो दीज 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स वी विल स्टडी इन ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट वन टॉपिक इज हियर हार्ट. So we know very well in circulatory system heart is very important topic, क्योंकि सबसे मेन जो वर्क ऑर्गन है सिस्टम में दैट इज हार्ट. क्योंकि हार्ट ही क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड की सप्लाई करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो वी विल स्टडी दैट वन हार्ट, क्योंकि हार्ट पुश करता है ब्लड को, तभी वो ब्लड वेसल्स से होता हुआ बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है. So heart we will study in this, and heartbeat also we will study. So these all topics will come in your circulatory system, in human circulatory system. So this one your full circulatory system.
Now next topic you will see related to animals, human excretory system. Excretion, I firstly told you what is excretion. Waste materials, वेस्ट मटेरियल्स को जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीटरी excretion, and those organs will include in the excretion, so we will call that human excretory system. Next one you will see here, transport of water and minerals. In plants, it is related to plants. So plants में किस तरह से water and minerals का transportation होता है, कैसे उनको transport किया जाता है plants को, that one process we will study in this topic. And next one is here, transpiration. So transpiration, you know very well, plants will take water through the roots from the ground. Okay, and that those water they have need, जितना उनको चाहिए they will use, and remaining extra water they will excrete through the stomata, and stomatas are present on the surface of the leaves. So firstly you know very well, on the leaf there are small stomatas are present, and plant will excrete extra quantity of water to these stomata. So we will call this process transpiration. So in this chapter we have to study about the transpiration also. So these all topics we will study in this: human circulatory system, human excretory system, transport of water and minerals, and transpiration. So this one chapter 11. Now beta you will see your next chapter, chapter 12. So chapter 12 name is here, reproduction in plants. So firstly you have to study in this about the types of reproduction. बेटा reproduction से mean होता है जनन, यानी पौधों में किस तरह से जनन होता है, न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है, सीड्स की फॉर्मेशन होती है. सो दिस वन वी विल स्टडी इन दिस. There are two types of reproduction. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. बेटा asexual reproduction क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. सो दैट इज टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. So asexual reproduction, there are some kinds of reproduction. First one is vegetative propagation. So vegetative propagation से मीन है जब किसी न्यू प्लांट की फॉर्मेशन किसी प्लांट की ब्रांच से या उसकी रूट से या फिर उसकी लीफ से होती है, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. लाइक वी कैन टेक एग्जांपल रोज. सो हमें एक नया प्लांट लगाना है रोज का, तो हम क्या लेंगे, उसकी एक ब्रांच कट करेंगे और उसको एज ए न्यू प्लांट हम ग्रो करेंगे. सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फिर ऐसे ही ब्रायोफिल्म है, पत्थर चट्टा, उसकी लीफ से एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है. सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. बडिंग ऑल्सो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा है, हाइड्रा की जो बॉडी है उसी की बॉडी से एक बड की फॉर्मेशन होती है, और यही बर्ड क्या होता है, धीरे धीरे एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना लेता है और फिर अपने पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उससे सेपरेट हो जाता है. तो ये हो जाती है बर्डिंग की प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट वन इज हियर फ्रेगमेंटेशन. यू विल सी हियर दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक फ्रेगमेंट होता है और वो फ्रेगमेंट जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज टू पार्ट्स. तो ये दो पार्ट्स हो गए फ्रेगमेंटेशन में. एक ही ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये दोनों ही पार्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे. तो एक से कितना का ऑरिजिन हो गया, टू ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन हो गया. सो दैट इज फ्रेगमेंटेशन. एंड नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है
एंड इसमें बहुत से स्मॉल स्मॉल स्पोर्स होते हैं एंड ये जो स्पोर्स हैं ब्रस्टिंग की प्रोसेस होती है। ब्रस्टिंग यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो अचानक से फटती है, ब्रस्ट होती है एंड ये सारे जो स्मॉल स्पोर्स हैं ये बाहर आ जाते हैं और आसपास के प्लेसेस पर फैल जाते हैं और फिर इन स्पोर से एक नए ऑर्गेनिज्म की या एक नए प्लांट की वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। सो दीज ऑल वी विल स्टडी प्रॉपरली व्हेन आई विल टीच दिस चैप्टर 12. Now you will see sexual reproduction. So beta, in sexual reproduction what things we will study? Firstly about the male reproductive part. ठीक है, प्लांट्स में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है इन अ फ्लावर। बेटा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होता है फ्लावर में होते हैं एंड फ्लावर में जो ये पार्ट्स होते हैं वही क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये जो गैमेट्स बनते हैं इन गैमेट्स का पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं। पॉलिनेशन भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, and second one is cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा, सेल्फ से ही समझ आ रहा है कि कोई भी जब मेल गैमेट्स उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट्स पर गिरता है, या हम कहें कि जब कोई मेल गैमेट से हम मीन है पॉलन ग्रेन से, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स जब उसी फ्लावर जिसकी ये पॉलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जब उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर ये पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स पर गिरते हैं तो उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इट इज ओनली अ बेसिक इंफॉर्मेशन बट व्हेन आई विल टीच चैप्टर आई विल टेल यू दीज ऑल थिंग्स प्रॉपरली। सो दैट इज pollination. Next you will see fertilization. Fertilization की प्रोसेस क्या है, when male and female gametes will meet together, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और फिर मिलकर के एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज जाइगोट। सो उनकी मिक्सिंग की जो प्रोसेस है दैट वी विल कॉल fertilization. And after the fertilization there will be fruits and seeds formation. ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में वहां पर फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर से फ्रूट्स बनता है एंड फ्रूट से फिर सीड्स की फॉर्मेशन होती है। एंड जब सीड्स बन जाते हैं तो सीड्स का डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल से मीन होता है सीड्स जो हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू सीड्स का डिस्पर्सल होता है, लाइक विंड की हेल्प से हो सकता है, वाटर की हेल्प से होता है, एनिमल की बॉडी के साथ चिपक करके भी सीड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव करते हैं। तो सीड्स डिस्पर्सल को भी हम स्टडी करेंगे in this 12th chapter. So that is reproduction in plants and this chapter is very interesting chapter. Now you will see your chapter 13. Chapter 13 is motion and time. So beta in class 6th I told you about the motion and types of motion. So same is here. In this we have to study about the slow and fast. कौन सा मोशन स्लो होगा, कौन सा मोशन फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है दैट इज स्पीड। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट दिस स्पीड इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। सो बेटा टाइप्स ऑफ मोशन मैंने 6th क्लास में पढ़ाया था। इन दिस क्लास ऑल्सो आई विल टीच यू and there are two new motions, uniform and non-uniform motion. So that one also I will teach you. So types, motions types I will teach you when I will teach this chapter 13. Next topic is units. So motion
के यूनिट्स भी हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा मोशन है या फिर जो स्पीड है उसको मेज़र करने की कौन सी यूनिट्स होती हैं, कैसे हम स्पीड को कौन सी यूनिट्स में मेज़र करते हैं. सो मोस्ट ऑफ मीटर, किलोमीटर, इनमें ही हम स्पीड को मेज़र करते हैं. नेक्स्ट वन मोर टॉपिक इज हियर मेजरिंग स्पीड. सो बेटा मेजरिंग स्पीड के लिए यहाँ पे 2 मीटर है. फर्स्ट वन इज स्पीडोमीटर एंड सेकेंड वन इज ओडोमीटर. सो स्पीडोमीटर क्या है, जिससे हम किसी भी व्हीकल की स्पीड को मापते हैं. एंड ऑडोमीटर से क्या होता है, उसकी डिस्टेंस को मापा जाता है कि कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने कवर किया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर टाइम. सो टाइम की यूनिट्स हम स्टडी करेंगे. टाइम की मेजरिंग किस तरह से की जाती है, लाइक वॉल क्लॉक होती है, वाटर क्लॉक होती है, ठीक है, सैंड क्लॉक होती है. पहले के टाइम में सैंड क्लॉक होता था, वाटर क्लॉक होता था, और एक जैसे हम बात कर सकते हैं वॉल क्लॉक हो गया, टेबल क्लॉक हो गया. सो इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं. सो दीज ऑल टॉपिक्स आई विल टेल यू व्हेन आई विल टीच दिस चैप्टर 13. रिमेनिंग टुमारो आई विल टीच यू. बाय एंड टेक केयर.